Hello, my dear students. Any sudden and quick change in any field of life is called a revolution. If this sudden and quick change appears in the field of education, it is educational revolution. It appears in the field of sports, it is sports revolution. It appears in the field of science, it is scientific revolution. Appears in the field of industry, it is industrial revolution. And appears in the field of politics, it is political revolution. Such an important revolution took place in 1789 in France. This is better known as the French Revolution of 1789. All of us must remember one thing. In France, 3 revolutions have been very, very important. Revolution of 1789, Revolution of 1830, and Revolution of 1848. We have already discussed the nature of the Revolution of 1789. We have already discussed the Revolution of 1789 as a turning point in the history of Europe and in the history of entire world also. We have already discussed the Revolution of 1789 in brief as an introduction. Now, we are going to discuss the factors responsible for the Revolution of 1789. One thing we have to remember, whenever we talk about the revolution in France, generally we are talking about the Revolution of 1789. हम लोग जब ये कहते हैं कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा मकसद 1789 के रिवॉल्यूशन से ही होता है। अगर हमें 1830 या 1848 के रिवॉल्यूशन के बारे में चर्चा करनी होती है, तो हम रिवॉल्यूशन वर्ड के साथ ये ईयर का नाम भी ऐड करते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसका मतलब जनरली यही समझा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। गुड। तो किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं जनरल कॉजेस या जनरल सर्कमस्टांसेस, दूसरे को बोलते हैं इमीडिएट कॉज या इमीडिएट सर्कमस्टांस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिवॉल्यूशन है क्या? तो जैसा मैंने कहा कि एनी सडन एंड क्विक चेंज इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सच a sudden and quick change appeared in France in 1789. This revolution made France a constitutional republic from an absolute monarchy. We can say from absolute monarchy to constitutional monarchy, and France emerged as a nation state. Rather, we can say France emerged as the first modern nation state in the entire Europe or entire world, with the slogan equality, liberty and fraternity, with the concept of a modern nation state. तो हम लोग फिर से आते हैं अपनी मूल बात पे, अपने असली बात पे। और हमारा बात क्या है भाई? हमारा बात है, हमारी टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। और उसमें हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, जनरल सर्कमस्टांसेस या जनरल फैक्टर्स या जनरल कॉजेस, इमीडिएट
या अल्टीमेट सर्कमस्टांसेस या फैक्टर्स या कॉजेस? ठीक है, तो सबसे पहले सर्कमस्टांस या फैक्टर या कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, शुरू करें? गुड। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. Sometimes it is asked, what were the political circumstances that led to the French Revolution of 1789? Sometimes it is asked, how far Louis XVI was responsible for the French Revolution of 1789? तो इस पे हम लोग बात करेंगे, दोनों तरह से इसके आंसर्स को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। लुईस 16 belonged to the Bourbon dynasty, the dynasty which was ruling in France. His wife, Marie Antoinette, was an Austrian princess, and she was of very expensive nature. मैरी एंटवाइनेट की ये खूबी थी, कह सकते हैं कि वो बहुत खर्च करती थी, और लुई 16 उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। ये भी एक सच्चाई है। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस ने लुई 16 को हेनपेक्ड हस्बैंड कहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या थे। ठीक है, ओके। एज फार एज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इन फ्रांस on the eve of the revolution of 1789 are concerned, there are 5 elements, there are 5 facts, there are 5 points, and these points must be noted. We are going to discuss the 5 points one by one, and these 5 points make Louis XVI responsible for the revolution of 1789. ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। हम ऐसे बोले कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जिसके चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 हुआ, उसमें ये 5 बातें थी, या ऐसे बोले कि ये वो 5 पॉइंट हैं, ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो लुई 16 को रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो वो भी सही है। आप दोनों ढंग से इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 फैक्ट्स इन ब्रीफ। पॉइंट नंबर 1, when Louis XVI got the throne of France in 1774, he was only 20 years of age. इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी यंग एज में एम्पेरर बने, काफी यंग एज में राजा बने, और जब वो राजा बने तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक तो यंग एज, और दूसरा इतना बड़ा एम्पायर, और तीसरी बात पड़ गई कि इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि लुई 16 ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी गॉट द थ्रोन ऑफ फ्रांस in 1774 at the age of 20 only. Hope it's okay? Fine. Second point. Louis XVI of Bourbon dynasty lacked intelligent decisiveness and strong character.
लुई 16 का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतना इंटेलिजेंट नहीं था। ये हम कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो काफी वाइज नहीं लगते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें देना चाहता हूं। लुई 16 ने बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज ऑन ब्रिटेन फॉर द डिफीट इन द 7 Years' War, Louis XVI decided to support the freedom fighters of the 13 colonies in North America against the British. यह डिसीजन कोई बहुत करेक्ट डिसीजन नहीं माना गया, क्योंकि जो फ्रेंच सोल्जर्स 13 कॉलोनीज में फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए गए और उन 13 कॉलोनीज के सक्सेस के बाद, ब्रिटेन की हार के बाद वो वापस लौटे फ्रांस, तो वो क्या लेकर लौटे? वो ले करके लौटे नेशन का कॉन्सेप्ट, वो ले करके लौटे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, वो ले करके लौटे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट। क्योंकि 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गए और नाम रख लिया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में। लेकिन उनको फुल सपोर्ट किसने दिया? फुल सपोर्ट दिया लुई 16 ने। और वो भी किस लिए? 7 Years' War में फ्रांस की हार हुई थी ब्रिटेन के हाथों, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन जो गड्ढा खोदा इन लोगों ने ब्रिटेन के लिए, उसमें ब्रिटेन गिरा, नो डाउट, लेकिन फ्रांस भी गिरा। मतलब फ्रांस का एब्सोल्यूट मोनार्की भी गिरा। जो सोल्जर्स वापस आए 13 कॉलोनीज से, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी की चर्चा फ्रांस में शुरू कर दी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि फ्रांस की जनता यूनाइट होकर के और इन्हीं राइट्स का डिमांड लुई 16 से करने लगी। दैट इज व्हाई आई सेड Louis XVI of Bourbon dynasty lacked intelligent decisiveness and strong character. यहां strong character वो लैक करते थे, ये हम कैसे कहेंगे भाई? लुई 16 में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ऑस्ट्रियन वाइफ मेरी एंटवाइनेट के किसी भी बात में ना कह सके। He had no courage to say no to his Austrian wife Marie Antoinette, and for that the historians have called him a henpecked husband. So this is the second point. What is the second point? The second point is Louis XVI of Bourbon dynasty lacked intelligent decisiveness and strong character. Third point. The third point is related to Mary Antoinette, Queen Mary Antoinette, the wife of Louis XVI. She was Austrian by origin. Okay. She had two big weaknesses. Number one, she always considered her to be superior than Louis XVI and influenced almost all the decisions taken by Louis XVI. Rather, we can say the decisions taken by Louis XVI were influenced by Marie Antoinette. This is first weakness of Marie Antoinette. And second, she had been a very, very expensive lady. बहुत खर्च करती थी वो, बिना सोचे समझे खर्च करना ये उनकी आदत थी, हैबिट थी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पैलेस ऑफ वर्साई में, इन द पैलेस ऑफ वर्साई, ओनली इन द सर्विस ऑफ मेरी एंटवाइनेट there were 1600 attendants. 1600
सर्वेंट्स। ये काफी है समझने के लिए। इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर ऐसा लगता है कि मैरी एंटोइनेट का था। और इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि फ्रांस का खजाना, द ट्रेजर ऑफ फ्रांस, ग्रेजुअली गॉट एम्प्टी। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द पुअर ट्रेजर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग लुई 16। There were other factors also, but this was one of the factors. Other factors कौन थे? तो मैं उसमें से एक और चर्चा आपसे कर दूं कि लुई 16 जो कंटिन्यूअस वॉर लड़ते थे, जानबूझ करके वॉर में अपने कंट्री को इन्वॉल्व करके रखते थे ताकि पब्लिक का ध्यान प्रॉब्लम की तरफ ना जा करके और किंगडम को बचाने की तरफ जाए, तो इसमें भी खजाना खाली हुआ। इनके जो एंसेस्टर्स थे उनसे इनको कोई खजाना भरा हुआ नहीं मिला था, वो भी लगभग खाली ही था। ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज द क्वीन मैरी एंटोइनेट, द वाइफ ऑफ लुई 16, हु वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओके, एक्सपेंसिव नेचर था इनका, ऐसा कह सकते। Point number 4. Louis XVI of Bourbon dynasty believed in divine rights. इसका क्या मतलब होता है? जब कोई राजा डिवाइन राइट्स में बिलीव करता है, ऐसा कहा जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि द किंग कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। Louis XVI used to say, I am the state. वो कहता था कि मैं ही राज्य हूं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, all powers were concentrated in the hands of the king. He was head of legislature, head of executive, head of judiciary. Everybody was responsible to him, but he was not responsible to anybody. Everybody was answerable to him, but he was not answerable to anybody. This is what he used to call his divine rights. इसी को लुई 16 कहता था कि ये मेरे दैवी अधिकार हैं, ईश्वर की तरफ से प्राप्त अधिकार। वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए नो वन कुड टेक करेज टू आस्क हिम एनीथिंग। कोई पूछ नहीं सकता था लुई 16 से कुछ भी। सो द फेथ इन डिवाइन राइट्स was the fourth factor responsible, fourth political factor responsible for the revolution of 1789. तो फोर्थ फैक्टर में हम लोगों ने क्या देखा? डिवाइन राइट्स थियोरी ऑफ लुइस द 16 ऑफ द बर्बन डायनेस्टी। द फिफ्थ फैक्टर, absolute monarchy or concentration of all the powers in one hand. जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात पर हल्का सा चर्चा किया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, और जुडिशियरी का काम है किसी भी डिस्प्यूट पर सही डिसीजन देना, यानी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। राजा जब इन तीनों का हेड हो जाता है और वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं होता है, बल्कि सब उसके लिए आंसरेबल हो जाते हैं, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एब्सोल्यूटिस्ट है। इसी को बोला गया एब्सोल्यूट मोनार्की। देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस विच कुड कंट्रोल
the activities and the powers and the functions of the king, Louis XVI. And that is why we call Louis XVI an absolute monarch. इसीलिए हम उसको ऐसा बोलते हैं. तो fifth point, I hope this is clear, that Louis XVI had got all the powers in his hand and he was exercising absolute monarchy. So, my dear students, these 5 factors which are related to political activities were responsible for the French Revolution. हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 के पॉलिटिकल कॉजेस थे. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि these 5 facts, these 5 points make Louis XVI responsible for the French Revolution of 1789. मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूं. What were the political circumstances on the eve of the Revolution of 1789? Or how far Louis XVI was responsible for the French Revolution of 1789? Hope all of you have understood this. Thank you very much. God bless you all.